ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਲੈਕਚਰਰ ਇਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵੇਰੀਅਸ ਲਾਈਨਸ ਔਨ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਟ, ਕਿ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਆਨ ਦਾ ਕਾਮਨ ਚਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ TDB ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਔਨ ਦ ਐਬਸੀਸਾ x axis drawn parallel to the ordinate and are uniformly spaced as figure shows। कि जो अपने को ड्राई बल्ब टेंपरेचर लाइन्स ने एक वर्टिकल लाइन्स ने एक्स एक्सिस के उत्ते जो कि पैरलल टू वाई एक्सिस ऑर्डीनेट के पैरलल असी प्लॉट करते हैं और सारी दियाँ सारियाँ लाइनां यूनीफॉर्मली स्पेस कीतियां होंदियां ने, जिवें कि तुहानूं फिगर शो करेगा। असी फिगर देखते हैं बाद। The temperature range of these lines as shown on the psychometric chart is from -6 degrees centigrade to 50 degrees centigrade with a difference of every 5 degrees centigrade and drawn up to saturation curve। कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ -6 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਤੱਕ ਹੀ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਸਕੇਲ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਫਰੋਮ ਟੋ ਟੂ ਦ ਹੀਲ। ਕਿ ਜੋ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀਲ ਤੱਕ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। The values of the dry bulb temperature are also shown on the saturation curve। कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਸਕੇਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਈਨਸ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਅਸੀਂ 5-5 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਨੀਚੇ ਗੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੀਚੇ ਬਾਟਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 5 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 15 ਡਿਗਰੀ 25 ਡਿਗਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ 35 ਡਿਗਰੀ, ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਂਜ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਈਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ TWB ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The wet bulb temperature lines are inclined straight lines, non-uniformly spaced, run downward from the saturation curve to the right at an angle of 30 degree to the horizontal as shown by the figure। कि ये जो लाइन्स ने साडे कोल ये बिल्कुल इनकलाइंड स्ट्रेट लाइन होणगियां जो कि नॉन यूनीफॉर्मली स्प्रेड कीतियां होणगियां। जिवें कि असीं पिछले वीडियो दे विच भी डिस्कस कीता सी कि स्टार्टिंग दे विच जो लाइनां दे विच जो डिस्टेंस होएगा वो घट होएगा। जिवें कि असीं सामने इत्थे डायग्राम दे विच देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग दे विच जो गैप होएगा बिटवीन द लाइन्स वो घट होएगा। जिवें जिवें लाइन्स मेरे कोल टो तो उपर वल नूं जाणगियां तो इन्हां लाइन्स दे विचला जो डिस्टेंस है वो वधदा जाएगा और इन्हां दा जो एंगल होएगा वो 30 डिग्री होएगा। और ये लाइन्स साडे कोल टो तो लैके हील तक जाणगियां, सैचूरेशन कर्व तो लैके डाउन तक जाणगियां इस तरीके दे नाल। सो नैक्सट अगले पॉइंट दे विच गल कर रहा, कहंदा एट एनी पॉइंट ऑन द सैचूरेशन कर्व द ड्राई बल्ब एंड वैट बल्ब टैंपरेचर्स आर इक्वल। कहंदा कि सैचूरेशन कर्व दे उपर किसी भी पॉइंट दे उपर जो साडे कोल वैट बल्ब टैंपरेचर है तो ड्राई बल्ब टैंपरेचर है दोनों ही इक्वल मन्ने जाणगे। जिवें कि असीं इत्थे देख पा रहे हैं कि सामने जो साडा ग्राफ शो कर रहा इत्थे नीचे साडे कोल 20 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई बल्ब टैंपरेचर है
एंड इत्थे ही असी उपर बिल्कुल जे अगर देखा जाए इस जगह ते वैट बल्ब टैंपरेचर ते ड्राई बल्ब टैंपरेचर दोनों ही सेम होणगे। नैक्सट पॉइंट दे विचों गल कर रहे द वैल्यूज़ ऑफ द वैट बल्ब टैंपरेचर आर गिवन अलॉन्ग द सैचुरेशन कर्व ऑन द चार्ट अबव द टो कि टो तो उपर वाला पोर्शन जिन्ना होएगा जिवें तुसीं इत्थे देख पा रहे हो सैचुरेशन कर्व के उपर सारी दियां सारियां वैल्यूज़ जो होणगियां वो इस कर्व के उपर ही असीं रिप्रजेंट करांगे वैट बल्ब टैंपरेचर दियां। सो होपफुली ये नाल ही तुहानूं समझ लग गई होएगी कि असीं वैट बल्ब टैंपरेचर लाइनस किस तरीके दे नाल ग्राफ के उपर रिप्रजेंट करते हैं। नैक्सट असीं गल करते हैं जी ड्यू पॉइंट टैंपरेचर लाइनस के बारे। इन्हों असीं TDP के नाल डिनोट करते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड के विच इन्हूं कैलकुलेट करते हैं। द ड्यू पॉइंट टैंपरेचर लाइनस आर द हॉरिजॉन्टल लाइनस ड्रॉन पैरेलल टू एब्सिसा एक्स एक्सिस एंड नॉन यूनीफॉर्मली स्पेस्ड एज शोन इन फिगर कि ये साडे कोल हॉरिजॉन्टल लाइनस ने जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल असीं प्लॉट कीतियां हुई ने और ये जो लाइनस होणगियां नॉन यूनीफॉर्मली प्लेस कीतियां होणगियां जिवें कि साडे कोल डायग्राम दे विच इत्थे रिप्रजेंट कीता होया तुसीं सामने देख पा रहे हो कि इस ग्राफ के अंदर साडे कोल जो हॉरिजॉन्टल लाइनस ने तुसीं इत्थे देख पा रहे हो ये सारियां साडियां हैगियां ने ड्यू पॉइंट टैंपरेचर लाइनस। स्टार्टिंग दे विच इन्हां दा जो गैप होएगा वो घट होएगा जिवें जिवें उपर वल नूं जाणगियां इन्हां दा जो गैप है वो वधदा जाएगा। नैक्सट पॉइंट दे विच वो गल कर रहा कहता एट एनी पॉइंट ऑन द सैचुरेशन कर्व द ड्राई बल्ब टैंपरेचर एंड ड्यू पॉइंट टैंपरेचर आर इक्वल कि सैचुरेशन कर्व के उपर जो साडा ड्यू पॉइंट टैंपरेचर ते ड्राई बल्ब टैंपरेचर है वो इक्वल होणगे इस कर्व के उपर। जिवें कि लास्टली असीं गल कीती सी कि साडे कोल वैट बल्ब टैंपरेचर ते ड्राई बल्ब टैंपरेचर वो इक्वल होणगे तो इस तरह ही अपने को जो ड्यू पॉइंट टैंपरेचर है वो भी इक्वल होएगा ड्राई बल्ब टैंपरेचर के सैचुरेशन कर्व के उपर ही सिर्फ। नैक्सट पॉइंट के विचों गल कर रहे हैं द ड्यू पॉइंट टैंपरेचर वैल्यूज़ आर गिवन अलॉन्ग द सैचुरेशन कर्व ऑन द चार्ट अबव द टो कि जिन्नियां भी ये वैल्यूज़ ने ड्यू पॉइंट टैंपरेचर दियां ये सारी दियां सारियां साडे कोल सैचुरेशन कर्व के उपर प्लॉट कीतियां हुंदियां ने जिवें कि तुसीं सामने स्क्रीन पर देख रहे हो। दिस शोज़ द 5 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर लाइन एंड दिस शोज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर लाइन इत्थे ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर लाइन इत्थे रिप्रजेंट हो रही है। तो इस तरीके दे नाल ही सारियां कर्व पूरे ग्राफ के विच अनइक्वली स्पेस कीतियां हुंदियां ने। नैक्सट है साडे कोल चौथे नंबर के उत्ते स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट लाइनस इन ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर कि जो साडे कोल स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी लाइनस ने या जिन्हां दा एक होर नाम भी है जिसनों असीं ह्यूमिडिटी रेशियो दे नाल डिनोट करते हैं। इन्हां नूं असीं किस तरीके दे नाल प्लॉट करते हैं। सो कहंदा जी द स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट लाइनस आर हॉरिजॉन्टल लाइनस पैरेलल टू द एब्सिसा एक्स एक्सिस यूनीफॉर्मली स्पेस्ड एज शोन इन फिगर कि जिवें असीं फिगर दे विच देख रहे हैं कि साडे कोल जो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनस ने जो कि इस ग्राफ दे विच प्लॉट कीतियां हुईयां ने जो कि इक्वली स्पेस्ड ने सारियां लाइनां दे विचला जो डिस्टेंस होऊगा वो सेम होऊगा यूनीफॉर्म होऊगा। ये अपने कोल लाइनस आउणगियां स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी लाइनस जिवें तुसीं इत्थे देख रहे हो कि बिल्कुल राइट हैंड साइड ते असीं कुछ इत्थे वैल्यूज़ डिनोट कीतियां ने ये सानूं ये वैल्यूज़ दे रही ने कि स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू किन्नी होएगी। हुण इत्थे कन्फ्यूजन थोड़ी जी ये आती है कि जो ड्यू पॉइंट टैंपरेचर लाइन सी या जो हुण असीं गल कर रहे हैं स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी की ये दोनों लाइनां तां अपने कोल हॉरिजॉन्टल ने किवें पता लगूगा कि साडे कोल ड्यू पॉइंट टैंपरेचर लाइन किहड़ी है ते स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन किहड़ी है। तां इत्थे कन्फ्यूज नहीं होना। अगर यही लाइन नूं असीं सैचुरेशन कर्व दे उत्ते स्टडी करांगे तां ये सानूं वैल्यू दऊगी ड्यू पॉइंट टैंपरेचर की। अगर इसे ही लाइन नूं असीं स्टडी करांगे राइट हैंड साइड ते तां ये सानूं वैल्यू दऊगी स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी की। बस इस चीज़ का ध्यान रखियो कि जो ड्यू पॉइंट टैंपरेचर है जिवें इत्थे तुहानूं हुण रिप्रजेंट कीता होया कि इत्थे एक एक लाइन छड्ड के मैं कुछ वैल्यू दित्ती है तो इस तरह ही जो इन्हां दा जो डिफरेंस होएगा जो टैंपरेचर नूं नोट करन दा तरीका है जिवें असीं पिछले पॉइंट दे विच स्टडी कीता कि ये जो ड्यू पॉइंट टैंपरेचर की जो रेंज होएगी वो अनइक्वल लाइनस होणगियां। वो कुछ इस तरीके दे नाल कि पहलां साडे कोल जो टैंपरेचर रेंजिस ने वो नेड़े नेड़े होणगे पर जिवें जिवें असीं उपर वल नूं जावांगे तो ड्यू पॉइंट के जो नोटेशनस होणगे वो दूर दूर हो जाणगे। बस इस चीज़ का ख्याल रखियो। नैक्सट पॉइंट के विच गल कर रहे हैं द मॉइस्चर कंटेंट रेंज ऑफ दीज लाइनस ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट इज़ फ्रॉम 0 डिग्री टू
0 to 30 gram per kg of dry air or from 0 to 0.030 kg per kg of the dry air कि जो इसकी रेंज इत्थे रिप्रजेंट की गई है, मैं 35 तक शो किया, इन्होंने 30 तक लिखा होया। सो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये रेंज अपनी उपर तक भी जा सकती है। इत्थे ग्राफ दे विच जो स्पेसिंग है मैं उसनों इक्वेट करन दे लई थोड़ा जिहा अगे पिछे वैल्यू करती। सो जो ये रेंजिज इत्थे हुण गल कर रहा है कि जो इसकी रेंज है 0 तो लैके अपने कोल 35 तक इत्थे शो की हुई है। सो इस तरीके दे नाल इनू असीं रिप्रजेंट किया होया। नैक्सट पॉइंट जो गल कर रहे हैं, द मॉइस्चर कंटेंट लाइन्स आर ड्रॉन विद द डिफरेंस ऑफ एवरी 1 ग्राम और 0.001 kg एंड अप टू द सैचुरेशन कर्व कि जो इन्हां दे विचला जो डिफरेंस होएगा, जो एक्चुअल दे विच जो डिफरेंस होएगा वो अपने कोल 1 ग्राम दे रिप्रजेंट करती हुई लाइन होएगी। मीन टू से जिवें तुसीं इत्थे ग्राफ ते देख रहे हो कि जो लाइन्स ने इत्थे हुण मैं जो शो किया होया 0, 5, 10, 15, इस तरीके दे नाल ही जो एक्चुअल ग्राफ होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ जो लाइन्स ਹੋਣਗੀਆਂ इन्ने नेड़े नेड़े ਹੋਣਗੀਆਂ कि एक लाइन तो दूसरी लाइन का जो गैप डिस्टेंस होएगा वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ 1 कि 1 ग्राम डिफरेंस ਨੂੰ शो करदियां लाइन्स ਹੋਣਗੀਆਂ। नैक्सट असीं गल करते हैं जी रैलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स के बारे। इन्हां नूं असीं परसेंटेज दे विच काउंट करते हैं कि जो रैलेटिव ह्यूमिडिटी है उसनूं जदों असीं कैलकुलेट करते हैं तो उत्थे ये नहीं लिखते कि डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ होर, इनू असीं काउंट करते हैं परसेंटेज दे विच कि किन्ने परसेंट साडी रैलेटिव ह्यूमिडिटी एटमोसफेयर दे विच प्रेजेंट है। सो द रैलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स आर द कर्व्ड लाइन्स एंड फॉलो द सैचुरेशन कर्व अलोंग द टो कि ये साढ़े कोल कर्व्ड लाइन्स ने जो रैलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स ने और ये सैचुरेशन कर्व दे अलोंग ही टो तो स्टार्ट होकर उपर वालों जांदियां ने, जिवें तुहानूं सामने डायग्राम शो कर रहा कि सामने डायग्राम दे विच तुसीं देख रहे हो कि ये टो पोर्शन है, सैचुरेशन कर्व है। सैचुरेशन कर्व सानू रिप्रजेंट कर रही है 100% रैलेटिव ह्यूमिडिटी और जिमें जिमें असीं नीचे नूं आई जावांगे तो साडे कोल रैलेटिव ह्यूमिडिटी की जो वैल्यू होएगी वो घटती जाएगी। जिमें तुसीं देख रहे हो 80%, 60%, 40, 20 और इसी तरह ही अपने कोल 0 तक चले जाएगी। सो राइट हैंड साइड पर तुसीं देख पा रहे हो स्पैसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ग्राम्स पर केजी ऑफ ड्राई एयर असीं नोट किया होया और नीचे साडे कोल ड्राई बल्ब टैंपरेचर है एज इट इज़। सो नैक्सट पॉइंट के गल कर रहे हैं दीज लाइन्स आर ड्रॉन विद द वैल्यूज़ 10%, 20%, 30% अप टू 100%, जिमें हुणी असीं डिस्कस करके हटे हैं। द सैचुरेशन कर्व रिप्रजेंट 100% रैलेटिव ह्यूमिडिटी, जिमें हुणी असीं गल की कि जो सैचुरेशन कर्व है वो सानू रिप्रजेंट करेगी कि उस लाइन के उपर जो रैलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% है। द वैल्यूज़ ऑफ द रैलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स आर मार्क्ड अलोंग द लाइन्स दैमसेल्फ एज शोन बाय द फिगर कि जिहड़ियां इन्हां दियां वैल्यूज़ ने वो लाइनां दे उपर ही लिखियां होणगियां, जिवें असीं डायग्राम दे विच देखिया सी कि 100% है, 80% है, 60% है, 40% है, सो ऑन। नैक्सट पॉइंट दे विच असीं गल करते हैं इंथैल्पी और टोटल हीट लाइन्स इन किलो जॉल पर केजी कि जो इंथैल्पी या जिन्हों असीं टोटल हीट लाइन्स भी काउंट करते हैं उन्होंने असीं डिनोट करांगे किलो जॉल पर केजी दे विच। सो उन्होंने लाइन्स नूं असीं ग्राफ के उत्ते किस तरीके नाल रिप्रजेंट करना, कहंदा जी इंथैल्पी और टोटल हीट लाइन्स आर इनकलाइंड स्ट्रेट लाइन्स यूनीफॉर्मली स्पेस्ड कि साढ़े कोल इनकलाइंड लाइन्स होणगियां जिवें कि असीं वैट बल्ब टैंपरेचर लाइन्स देखियां सी उस तरीके दे नाल ही जिवें साढ़े कोल सामने ग्राफ दे विच इत्थे शो हो रहा कि जो साडियां वैट बल्ब लाइन्स ने उही साडियां इंथैल्पी की वैल्यू भी देगी कि हुण इंथैल्पी की वैल्यू असीं काउंट करते हैं इस ग्राफ के उपर, इस लाइन के उपर। सो इस लाइन के उत्ते यही जो साडियां वैट बल्ब टैंपरेचर लाइन्स ने इन्हां नूं जदों असीं स्ट्रेट अगे लैके जाते हैं सैचुरेशन कर्व तो अगे तो ये सानूं वैल्यूज़ दिंदियां ने इंथैल्पी दी। सो नैक्सट पॉइंट के विच गल कर रहे हैं दीज लाइन्स आर पैरलल टू द वैट बल्ब टैंपरेचर लाइन्स, जिवें हुणी असीं गल कीती ड्रॉन अप टू द सैचुरेशन कर्व शोन बाय द फिगर। सम ऑफ दीज लाइन्स कंसाइड विद द वैट बल्ब टैंपरेचर लाइन्स कि कुछ इन्हां दे विचों कुछ लाइन्स ने जो कि एज इट इज़ सेम होणगियां जो साडियां वैट बल्ब टैंपरेचर रिप्रजेंट लाइन होणगियां, रिप्रजेंटिंग लाइन्स होणगियां। जिवें कि असीं गल कर लईए की कहना चाह रहे इस पॉइंट दे विच, मान लो ये जो लाइन है इत्थे मेरा वैट बल्ब टैंपरेचर शो हो रहा,
इस जगह ते मेरी नैक्सट लाइन आ रही है और इस जगह ते जो मेरी ये लाइन आ रही है ये मैनू इंथैल्पी की वैल्यू तो दे रही है, बट इस लाइन के उपर मेरा जो वैट बल्ब टैंपरेचर है वो एग्जैक्टली नहीं रिप्रजेंट कर रहा। और अगली लाइन के उत्ते मेरे को एज इट इज़ मेरा वैट बल्ब टैंपरेचर भी शो हो रहा। तो मीन टू से ये कहने का मतलब यही है कि इन्हां लाइनस की स्टडी इस सैचुरेशन कर्व के अंदर मैनू इस सैचुरेशन कर्व के उपर वैल्यू देगी वैट बल्ब टैंपरेचर की। इन्हां ही लाइनस में जो एक्सटेंड किया जाऊगा और इस लाइनस तक असी नोट करांगे तो इत्थों सानू वैल्यू पता लगेगी इंथैल्पी की। और अगले पॉइंट के विच वो गल कर रहा, द टोटल इंथैल्पी इज़ गिवन ऑन द स्केल अबव द सैचुरेशन कर्व इन किलो जाउल पर केजी ऑफ द ड्राई एयर। कि ये जो इंथैल्पी की वैल्यू है वो साडे कोल ग्राफ तो बाहर सैचुरेशन कर्व के उपर शो होगी, जिवें असीं सामने स्क्रीन ते देख पा रहे हैं। नैक्सट असीं गल करते हैं जी स्पैसिफिक वॉल्यूम लाइनस इन क्यूबिक मीटर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। कि जो स्पैसिफिक वॉल्यूम लाइनस ने इन्हों असी ग्राफ से किस तरीके रिप्रजेंट करांगे और इसकी जो वैल्यू है ये असी क्यूबिक मीटर पर केजी ऑफ ड्राई एयर दे विच कैलकुलेट करांगे। सो कहना स्पैसिफिक वॉल्यूम लाइनस आर इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइनस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल यूनीफॉर्मली स्पेस्ड एज शोन इन फिगर। कि ये जो लाइनस ने साडे कोल इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइनस होणगियां जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाउणगियां हॉरिजॉन्टल दे नाल। सो जिवें तुसीं सामने देख रहे हो इस फिगर दे विच साडे कोल जो सारियां दियां सारियां रैड कलर्ड लाइनस ने जो कि 60 डिग्री के एंगल के उत्ते प्लॉट कीतियां ने, ये सानू वैल्यूज़ देणगियां कादी स्पैसिफिक वॉल्यूम दी। कि स्पैसिफिक वॉल्यूम जो है उस दियां वैल्यू साडे कोल डिफरेंट किहड़ी किन्नी होएगी किस किस जगह के उत्ते। कहता द लाइनस आर ड्रॉन अप टू सैचुरेशन कर्व। कि जिहड़ियां ये लाइनस ने ये असीं सैचुरेशन कर्व तक प्लॉट करांगे। द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम लाइनस आर गिवन एट बेस ऑफ द चार्ट दैट इज़ एब्सिसा इन क्यूबिक मीटर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। कि जो ये वैल्यूज़ ने स्पैसिफिक वॉल्यूम दियाँ जो स्पैसिफिक वॉल्यूम है ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਿ ਜੋ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਦ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਐਂਡ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਸਪੇਸਡ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ these are not drawn in the main chart। कि इन्हों असी मेन चार्ट के विच प्लॉट नहीं करते। अपने कोल हॉरिजोनटल लाइनस ने जो कि यूनीफॉर्मली स्पेस्ड होणगियां, जिवें साडे कोल साडा ड्यू पॉइंट टैंपरेचर लाइन सीगियां। ड्यू पॉइंट टैंपरेचर साडे कोल इस चार्ट के विच किवें प्लॉट कीतियां सी असीं कि जिहड़ियां साडे कोल हॉरिजोनटल लाइन सीगियां जो असी मेन चार्ट के विच इत्थे नहीं प्लॉट कीतियां सी, उही सानू लाइनस नूं जदों असी एक्सटेंड करके इस वैल्यू तक लैके जावांगे, इस मईरिंग स्केल तक लैके जावांगे तो सानू वैल्यूज़ मिलणगियां एग्जैक्टली ऑफ वेपर प्रैशर इन mm ऑफ HG दे विच। कि जो मरकरी है मरकरी नूं अगर असी mm दे विच लैके चलीए जो कि सीगा साडे कोल 760 mm, तो इत्थों साडे कोल वैल्यूज़ पता लग सकदियां ने कि वेपर प्रैशर दियां की वैल्यूज़ ने। नैक्सट पॉइंट दे विच कहंदा बट द स्केल शोइंग द वेपर प्रैशर इन mm of Hg is given on the extreme left of the chart as shown in figure। कहंदा जिहड़ा ये स्केल है ये बिल्कुल लैफ्ट साइड के उत्ते सानू दिता होया जिवें तुसीं देख ही पा रहे हो सामने। सो इस तरीके दे नाल असीं जो डिफरेंट साडियां लाइनस ने साइकोमैट्रिक चार्ट के उत्ते उन्हां दे बारे असीं इस वीडियो दे विच सिੱਖਿਆ कि किस तरीके दे नाल उन्हां नूं प्लॉट करदे आ, उन्हां दियां की क्वालिटीज़ हैगियां ने। सो होपफुली तुहानू ये जो टॉपिक सीगा अच्छी तरह दे नाल समझ आया होगा। नैक्सट असी गल करते हैं कि साइकोमैट्रिक चार्ट दे विच ही जदों असी किसी वैल्यू नू कैलकुलेट करना होवे तां किस तरीके दे नाल कैलकुलेट कर सकते हैं। जिमें कि इत्थे तुसीं सामने पढ़ सकते हो कि ऑन अ साइकोमैट्रिक चार्ट द वेरीअस लाइनस इंडिकेट वेरीअस साइकोमैट्रिक टर्म्स शोइंग द कंडीशंस ऑफ द एयर एज। कि जो डिफरेंट लाइनस ने इत्थे कोई कंडीशन डिफरेंट एयर दियाँ वो कुछ इस तरीके दे नाल शो करदियां ने कि जदों सानू कोई दो वैल्यूज़ पता होण इन्हां चार क्वांटिटीज़ दियां, जिमें कि DBT है ड्राई बल्ब टैंपरेचर, वैट बल्ब टैंपरेचर,
ड्यू पॉइंट टैंपरेचर या ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ जो कि साडी रैलेटिव ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ है। इन्हां दे विचों अगर सानू कोई दो वैल्यूज़ पता ने तो बाकी आपां दो नूं कैलकुलेट ईजीली कर सकते हैं। जिवें कि तुसीं सामने जो साडा फिगर शो हो रहा इस दे विच देख पा रहे हो कि मान लो इस फिगर दे विच मेरे कोल कुछ दो वैल्यूज़ पता ने, मीन टू से कि मैनू मान लो इत्थे रैलेटिव ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ पता है कि मेरी कितनी दिती हुई है एंड उहदे नाल मेरे कोल ड्राई बल्ब टैंपरेचर जो है वो मैनू दिता होया। ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। एंड इस तरह ही मेरिया जो वैट बल्ब टैंपरेचर लाइन्स ने मैनू पता है कि वो 30 डिग्री ते प्लॉट होंदियां ने, तो इसे ही पॉइंट चों पास करता होया 30 डिग्री ते जो मैं लाइन प्लॉट करूँगा तो मैनू इस सैचुरेशन कर्व ते इस पॉइंट के उत्ते वैल्यू पता लग जाएगी कि मेरा इस पॉइंट के कोरसपोंडिंग मेरा वैट बल्ब टैंपरेचर कितना है। नैक्सट इस चीज़ को असीं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझण की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम्पल के विच वो दस रहा कहता जी सपोज वी वांट टू फाइंड द ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ कि जो रैलेटिव ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ है वो असी कैलकुलेट करनी है कि कितनी होएगी। फिगर जो इत्थे सामने है वो सानू शो कर रहा फिगर बी शोज़ दैट फॉर अ DBT ड्राई बल्ब टैंपरेचर ऑफ 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड कि जो ड्राई बल्ब टैंपरेचर है वो सानू 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड दिता होया और वैट बल्ब टैंपरेचर सानू 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड दिता होया। तो ये कोरसपोंडिंग असी ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं रैसट दो जिहड़ियां बाकी वैल्यूज़ होणगियां जिहदे विच खास तौर पर इन्हें पूछा कि ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ कितनी होएगी। हुण असी की कीता कि इस पूरे चार्ट दे विच असी देखिया कि जो साडियां ड्राई बल्ब टैंपरेचर जो कि सानू रिप्रजेंट कर रही है कि 26.7 डिग्री जिथे टैंपरेचर साडा शो होगा उस पॉइंट के उत्ते असी लाइन एक जो वर्टिकल लाइन सी वो प्लॉट कर ली एंड ये नाल ही जो साडा वैट बल्ब टैंपरेचर दिता होया 19.4 असी इस सैचूरेशन कर्व के उपर देख लेना कि साडे कोल 19.4 टैंपरेचर कित्थे होऊगा। उत्थों असी 30 डिग्री के उत्ते एक लाइन प्लॉट कर लेनी है। तो जिथे भी इन्हां दा इंटरसैक्शन पॉइंट आएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट ते सपोज इन्हां दा इंटरसैक्शन पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट के कोरसपोंडिंग जो बाकी वैल्यूज़ होणगियां जिवें कि रैलेटिव ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ इत्थों की जो पास करेगी वो असी नोट कर सकते हैं और इसे ही पॉइंट के कोरसपोंडिंग जो साडे कोल सैचूरेशन कर्व के उपर बिल्कुल हॉरिजोंटल लाइन इस पॉइंट के उत्ते जो वैल्यू देगी वो साडे कोल ड्यू पॉइंट टैंपरेचर हो जाएगा। और इस जगह पर जो असी नोट किया वो आ गया साडे कोल 50% रैलेटिव ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ आ गई तो जो साडा ड्यू पॉइंट टैंपरेचर सी वो साडे कोल आ गया 15.7 डिग्री सेंटीग्रेड। नैक्सट असी एक होर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। ये की कहता नाउ फाइंड द WBT वैट बल्ब टैंपरेचर एंड परसेंटेज ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ असी ये दो चीज़ां कैलकुलेट करनियां ने और ये वास्ते कहता सपोज सानू DBT ड्यू ड्राई बल्ब टैंपरेचर एंड ड्यू पॉइंट टैंपरेचर दोनों ही दिते हुए हैं। ड्राई बल्ब टैंपरेचर सानू 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड दिता होया एंड ड्यू पॉइंट टैंपरेचर साडे कोल 12.8 डिग्री सेंटीग्रेड दिता होया। और ये वास्ते साडे कोल कुछ जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके का होएगा, चार्ट दे विचों ही लिया होया। ये एग्जैक्ट मेरे को चार्ट नहीं है, जस्ट तुहानू शो करन दे लई तुहानू समझाउण दे लई मैं इत्थे ग्राफ इस तरीके दे नाल प्लॉट कीता। एग्जैक्टली आउण वाले वीडियोज़ दे विच मैं तुहानू एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके दसूँगा कि साइकोमैट्रिक चार्ट की हैल्प दे नाल असीं ये वैल्यूज़ किस तरीके दे नाल कैलकुलेट करते हैं। सो इस एग्जाम्पल के उन्होंने दो चीज़ां सानू दित्तियां हुई, ड्राई बल्ब टैंपरेचर दिता होया, ड्यू पॉइंट टैंपरेचर दिता। सानू पता है कि जो ड्राई बल्ब टैंपरेचर है उहदियां बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल लाइनस होंदियां ने। नीचे बेस तो असी देख लेना कि साडे कोल 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड कित्थे आएगा। सपोज इस जगह पर मेरे को आ गया, उतो मैं एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर ली एंड ड्यू पॉइंट टैंपरेचर मैं नोट किया कि मेरा सैचूरेशन कर्व के उपर मेरे को 12.8 वैल्यू कित्थे आ रही है और उस जगह पर मैं एग्जैक्ट एक पॉइंट लगा लिया जिथे दोनों का इंटरसैक्शन पॉइंट बनता पाया और इसे ही पॉइंट दे विचों दी पास हुंदी जो रैलेटिव ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ लाइन्स ने
ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 69% ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੋ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ 30 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ 14.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਸਰਕੂਲੇਟਡ ਏਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ WBT ਐਂਡ ਡਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ 2 ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਆਫ ਏਅਰ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਐਜ਼ ਫੋਲੋਜ਼। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ WBT ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਤੇ ਡਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ 25% ਆਫ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਜ਼ dew point dry bulb temperature and wet bulb temperature of 35.6 degree centigrade and 23.9 degree centigrade at point A। कि जो मिक्सचर है ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 25% ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ 75% ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ B। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਟਰੀਮਸ ਨੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ A ਸਟਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ 25% ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਂ 75% ਆ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ C ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਕਸ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਤੇ ਡਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ 25% ਦੀ ਏਅਰ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ 35.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦਾ 23.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। 75% ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 15.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 8.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਇਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ A ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 35.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25%। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਨਾਲ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.25, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ 35.6 ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ 75% ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 15.6, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ 8.9 + 11.7, ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦਾ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 20.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਨ ਬਿਟਵੀਨ AB, ਕਿ ਜਿਹੜਾ AB 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਪਲਾਟ ਕਰੋ। This line intersect with 20.6 degree centigrade DBT line at point C। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ AB ਹੈ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 15.6, B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਡਰਾਈ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 35.6, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 8.9, A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ, B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਟ ਬਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ 23.9। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਈ
ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ 20.6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ C ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਗੀ 13.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ 13.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਏ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।